Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the chapter 4 of your geography. The name of the chapter is Agriculture. Students, as you all know that in this chapter we have to be learn about the agriculture, what is agriculture, importance of agriculture, and then different type of agriculture, and also about the major crops of the country. So the whole chapter is surrounding about the agriculture and its related topics. So let us start the chapter. The first topic is agriculture in India. As we all know that our country is a agricultural country, and agriculture is an important activity in our country, as agriculture is a primary activity, and it is what exactly agriculture, that agriculture produces most of the food that we consume. India is an agricultural important country, okay, and हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम फूड जो है दैट इज़ वी आर टेकिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर, एंड agriculture also produces raw material for various industries. Okay, India is the second in the world in crop output next to China. अगर हम क्रॉप आउटपुट की बात करें तो इंडिया जो है वो सेकंड प्लेस पर है इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना, and in our country that is 1.4 million square kilometer of land is under the cultivation. And India agriculture is India's biggest economy. Agriculture इंडिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है. Okay, now come on the next, that is the type of farming, in which we have to be learn about the different type of farming. Nowadays, because of large scale use of technology in the agriculture, here we are different type of farming that practiced in the different areas of the world. Okay, so let us read about it. Our years cultivation methods in India have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know how and social cultural practices. तो हमारे जो टाइप ऑफ फार्मिंग है वो that depend on these three factors. One is physical environment, second is technological know how, and social cultural practices. ओके, फिजिकल इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को, बिकॉज जैसा इन्वायरमेंट होगा हम उसी टाइप की एग्रीकल्चर जो है वो पॉसिबिलिटी हो पाएगी. और टेक्नोलॉजिकली अगर हमें वी इफ़ द एरिया हैव capable in use the maximum technology, then also affect the type of farming. चलिए let us read about the type of farming. We have the mainly three type of farming. One is primitive subsistence farming, second is intensive subsistence farming, and fourth is commercial farming. Okay, now let us read about the very first type of farming, that is primitive subsistence farming. Now primitive subsistence farming, students, as you all know that this is the firstly practiced farming in the world, or we can say human being firstly started to this type of farming. Human being ancient time period से, और हम ये कह सकते हैं कि जब से ह्यूमन बीइंग ने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया तो दैट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. वो सबसे पहले जो स्टार्ट की गई थी वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी. दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ फार्मिंग. ये सबसे पुराना मेथड ऑफ फार्मिंग है, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑन द ओल्ड criteria. पूरा का पूरा old methods is old criteria. Without any new technology we are practicing this type of farming. Let us read about the characteristics of the primitive subsistence farming. Just see here that in our country still we are using the type, in some areas we are using the this type of farming. It is practiced on small patches with the help of primitive tools.
like hoe, dough, digging sticks, and family or community labor. This type of farming depends on monsoon, natural fertility of the soil, and stability of the other environmental conditions. So, exactly first point that it is practice. अगर हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को लर्न करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट जो इसका बनता है हमारे पास, दैट इज़ इट प्रैक्टिस ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. सेकेंडली, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक hoe, dough and digging sticks, and it in this farmer doing the cultivation only for family or community labor. Okay, this type of farming depend upon monsoon, natural fertility of the soil and sustainability of the other environmental conditions. Okay, अब फार्मर्स जो है एग्जैक्टली इस टाइप ऑफ फार्मिंग में ओल्ड मेथड्स को यूज़ कर रहा है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. हम इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी के रूप में भी जानते हैं. अब देखिए बच्चे, सबसे पहले तो ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग है ये उन एरियाज़ में प्रैक्टिस होती है जहाँ पर लेस पॉपुलेशन है. ठीक है. सेकेंडली, इट ऑल्सो प्रैक्टिस इट at the small patches of land. ठीक है. farmers using the old methods or using the old tools. Okay, the production is only for family or community. Okay, and the farming is totally depends on monsoon, natural fertility of soil and the other environmental conditions. Now this is also known as slash and बर्न कल्टिवेशन. स्लैश एंड बर्न क्यों है? क्योंकि फार्मर क्या कर रहा है इसमें, फार्मर एक एरिया को बर्न कर रहा है, जैसे यहाँ पर पिक्चर्स में शो किया गया है, एक एरिया को बर्न कर रहा है और उसमें कल्टिवेशन कर रहा है. देन स्टार्ट द कल्टिवेशन इन दैट एरिया एंड आफ्टर इट टेक 1 or 2 क्रॉप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया. और उसके बाद वो जैसे ही सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज़ करती है, फार्मर शिफ्ट द अनदर एरिया and start the same process slash and burn. Okay, this allows nature to replenish the fertility of the soil. और जब वो उस लैंड उस पैच को छोड़ देता है तो क्या होता है कि नेचुरली उस लैंड पोर्शन की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डिपेंड ऑन द नेचर. वो टोटली नेचर पर डिपेंड कर रहा है, जिसमें फार्मर जो है कोई फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न इनपुट्स को यूज़ नहीं कर रहा. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ नोन एज डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. इन इंडिया इट इज़ नोन एज झूमिंग, मणिपुर में पमलू, छत्तीसगढ़ दीपा, अंडमान निकोबार दीपा, मध्य प्रदेश में बिवार, पुडू, कोमन, कुमारी. ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द स्लैश एंड बर्न टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री एंड दिस आर इन वर्ड में ब्राज़ील में इट इज़ नोन एज रोका, सेंट्रल अफ्रीका मुसला, इंडोनेशिया लैंडेंग एंड वियतनाम रे. Okay, so these are the main names of the primitive subsistence farming. So this is about your primitive subsistence farming. Now come on the next type of farming, that is intensive subsistence farming. This type of farming is different from the primitive subsistence farming, or it is totally depend on the new techniques. ये न्यू टेक्निक्स पर डिपेंड कर रही है और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की ये कह सकते हैं कि हम मॉडर्न फॉर्म है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस इन द एरियाज़ ऑफ हाई पॉपुलेशन एरियाज़ में हम इसको प्रैक्टिस करते हैं जहाँ पर लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. येस, लेबर रिक्वायर्ड है इसमें, where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. ठीक है. लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, दिस इज सेकेंड पॉइंट. और थर्ड पॉइंट क्या है? इरिगेशन मेथड्स को यूज़ कर रहा है एंड ऑल्सो ऑब्टेनिंग द ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हम बायोकेमिकल इनपुट्स
और इरिगेशन मतलब वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एज वेल एज मशीनरी फॉर obtaining the higher production. Okay, in this type of farming, production is not only for family but also for selling purpose. ठीक है, वो दोनों पर्पस के लिए कर रहा है, फैमिली के लिए तो कर ही रहा है बट अपनी सेल पर्पस के लिए भी इसको प्रोडक्शन को कर रहा है. ठीक है, इनहेरिटेंस लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लैंड अमंग हिज सक्सेसिव जनरेशन हैज़ रेंडर्ड द लैंड होल्डिंग साइज अनइकनॉमिकली. हाँ, ये एक प्रॉब्लम आ गई है कि अब जो साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग्स हैं वो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है और वो इकनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहा है. ठीक है, एंड फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इज एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. ओके, दस देयर इज़ अ इनॉर्मस प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड. और यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है. ओके, चलिए नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग. दिस इज़ द कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग, in this type of farming higher doses of modern inputs की हाई डोज होती है. सबसे पहले तो कमर्शियल फार्मिंग इज दैट टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच फार्मर्स द मेन एम इज टू प्रोड्यूस द गुड्स फॉर सेल, दैट इज मेनली फॉर सेलिंग पर्पस. ठीक है, जो क्रॉप है वो मेनली सेलिंग पर्पस के लिए कर रहा है. ठीक है, हाई डोजेस, वो बहुत ज़्यादा हायर डोज यूज़ कर रहा है मॉडर्न इनपुट्स की, जिसमें वो HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ऑल दैट वी आर यूजिंग एट higher productivity to obtain the higher productivity. Secondly, this type of farming is practiced in the areas both in the dense populated area and also in those areas where you have the less population. जहाँ पर जो type of farming जो वो कह सकते हैं कि हम जो land of plots जो हैं they are very big. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में भी हम मेनली कमर्शियल फार्मिंग ही यूज़ करते हैं. ठीक है, जिसमें फार्मर्स हैविंग टेकिंग द वन क्रॉप, फार्मर्स के पास साल में एक ही क्रॉप लेता है एंड दैट इज़ एट द लार्ज स्केल. ठीक है, फॉर सेलिंग पर्पज ओनली, एंड द पर हेक्टर प्रोडक्शन इन द कमर्शियल फार्मिंग इज़ लेस एज कंपेयर टू द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ओके, तो कमर्शियल फार्मिंग द मेन एम क्या होता है हमारे पास? हायर प्रोडक्टिविटी एंड टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, राइस इज़ अ कमर्शियल क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा बट इन उड़ीसा इट इज़ द सबसिस्टेंस क्रॉप. तो यहाँ पर उड़ीसा में वो सबसिस्टेंस क्रॉप है क्योंकि वो वहाँ पर स्टेपल फूड है, तो मेनली फॉर कंजप्शन ऑफ द फार्मर्स फैमिली. बट पंजाब हरियाणा में राइस स्टेपल फूड नहीं है, तो वहाँ पर हम जो राइस की प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट इज़ फॉर कमर्शियल पर्पसेस. okay, so this is your commercial farming and this all is about your type of farming and the agriculture. Okay, so that's it for today. Next topic we will discuss in the next video. Till then, goodbye, thank you.